Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. I welcome you all to your favorite physics channel, College Physics. Here you will find work solutions of all O and A level past papers solved by teachers and A-star students. So subscribe to our channel and forward it to other Cambridge learners. Thank you. Okay, the paper we're starting off with today is from May-June 2019, P6, variant 61. This is our alternative to practical and it's for 1 hour. We're going to start off. Question number 1. A student is determining the weight of a meter rule using a balancing method. जो meter ruler है हमारे पास basically हम उसका ही weight determine कर रहे हैं. Figure 1.1 shows the apparatus. अब apparatus में हमारे पास क्या है? हमारे पास एक meter rule है यहाँ पर, ठीक है, place हुआ हुआ है. उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक mass place हुआ हुआ है जो P के नाम से है. हमारे पास markings दी हुई है. We have a 0, we have a 100. Basically ये 50 का सेंटीमीटर का मार्किंग है मिडिल में. We have a bench, we have a pivot and हमारे पास A और B एक तरीके की कैलकुलेशन है. अब हमें पता चलेगा ये कैलकुलेशन किस चीज़ की है, किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है in the next explanation. Okay. The student places the meter ruler on the pivot. He places the load P on the meter ruler at the 90 centimeter mark. 90 centimeter के मार्क पे मैं नज़र आ रहा है कि इसने P को प्लेस किया हुआ है. एग्जैक्ट P का जो सेंटर है ना वो 90 सेंटीमीटर को हिट कर रहा है. ठीक है. He adjusts the position of the meter ruler on the pivot so that the meter ruler is as near as possible to being balanced. He records the distance A from 90 centimeter mark to the pivot. मतलब कि A वो है कि जहाँ पर हमारा mass placed है from that to the pivot. So from the mass to the pivot. I'm sorry, मैंने येलो में पता नहीं क्यों लिखा. Okay, next B. It's from the pivot to the 50 centimeter mark. ये हमारे पास already लिखा हुआ है. ठीक है. नज़र A from our mass to the pivot and B from the pivot to the 50 centimeter mark. ये है balance रखना है meter ruler को throughout all of this. He repeats the step placing the load P at the 85 centimeter mark, the 80 centimeter mark, the 70 centimeter mark and the 75 centimeter marks. The readings are shown in table 1.1. मतलब कि उसने क्या किया? उसने A को मतलब उसने जैसे समझे यहाँ पे उसने लोड रखा हुआ है 90 पे, ठीक है. उसने फिर लोड को यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा. तो इसके लिहाज से अगर हम A को कम कर रहे हैं तो क्या होगा? ये ऊपर उठ जाएगा. आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Let me just try and draw it. For example, अगर हमने मास यहाँ रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा? मास का इतना प्रेशर आएगा ये ऊपर चले जाएगा. समझ आ रही? तो हमें पिवट को भी इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा मीटर रूलर बैलेंस रहे. अब अगर हम हम पिवट को राइट के टुवर्ड्स मूव करेंगे तो हमारा बी भी कम होगा. तो जैसे ही हम ए की मेजरमेंट्स रिड्यूस करें बी विल आल्सो रिड्यूस. एंड दैट इज प्रूवन थ्रू दिस टेबल बिकॉज एज यू कैन सी आपकी ए की जो रीडिंग्स हैं 21, 18, 16, 13, 10.5 they're reducing as well as the readings or measurements for B. They're also reducing. Basically, it's a directly proportional relationship. Now, what we're going to do, obviously, हमें इसका graph plot करना होगा. अब हमें बता रहा है कि y-axis पे हमें A करना है and x-axis पे हमें B करना है. तो y-axis पे we have A and इसका centimeters and x-axis पे हमारे पास है B. ठीक है. अब हमारे पास values हैं. We do not need to begin our axis at the origin. That's a good thing. ये इसको थोड़ा okay. So A की हमारे पास values हैं 21, 18, 16, 13, 10.5. तो I think हम 10 से शुरू करते हैं, हम around 25 पे stop करेंगे, ठीक है. So we're gonna start off with 10, 15, 20, 25. ये थोड़ा कम कर रहा है. हम ऐसे भी कर सकते हैं 10, 12, 14, 16 नहीं, फिर कंप्लीट नहीं होगा, 21 तक नहीं आएगा. I think these are our options, so I think we're just gonna go with 10, 15, 20, 25. ठीक है. Next, as long as हमने आधे से ज़्यादा मैप हर एक्सेस को we've used more than half, it's not an issue. ठीक है. Next, हमारे पास B है हमारे पास 19, 17, 14, 11 and 9. तो आई थिंक हम 9 से शुरू करेंगे और हम 20 तक लेकर जाएंगे, ठीक है.
सो 9 बेसिकली हम 9 से नहीं कर सकते, हम 5 से कर सकते हैं, या हम 8 से कर सकते हैं, क्योंकि 5, 10, 15, 20 इस तरह कर सकते हैं, हम 8 से कर सकते हैं, जैसे 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरह कर सकते हैं. आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर. सो वो गो 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. That covers all of our bases for for B. ठीक है, क्योंकि B हमारे पास 9.5 से लेके 19.1 तक है. सो ये हमारे पास आ गया. हाँ, आप चाहें तो आप A का भी चेंज कर सकते हैं, बट मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा इस वक्त. एंड आई डोंट वांट टू गो विद द कंफ्यूजिंग स्केल, यू नो, जैसे हम करें 10 then 13 then 16 then 19. it's a little confusing. बल्कि मैं कर लेती हूँ ताकि किसी को इशू नहीं हो. मैं कर लेती हूँ ताकि थोड़ा बड़ा हो हमारा स्केल, आई मीन हमारा ग्राफ थोड़ा बड़ा हो. इट विल बी मच ईजियर फॉर अस टू फोकस ऑन. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ 10. वो गो विथ, यहाँ पर हम कर लेंगे 9. ठीक है, 10, 13, 16, 19. ठीक है, 19. वो गो विथ 19, 20, 21, 22. ठीक है, you can go for 25 if you want to. लिख देते हैं 25. ठीक है, अब हम अपने कैलकुलेशंस को हम अपने मार्क्स करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास A पे है, मैं ऊपर जाती हूँ. A पे है हमारे पास 21 एंड B पे है 19.1. ठीक है, तो A पे है हमारे पास 21 एंड B पे है, अब देखिए हमारे पास 22 है. 22 और 25 के बीच में आएगा 21, आई मीन सॉरी 19 और 22 के बीच में आएगा. सो 19 होगा, फिर होगा हमारे पास 20 यहाँ पर, 21 यहाँ पर, इस तरह. ठीक है, सो 21 एंड 19.1. 21 और 19 हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 19. ठीक है, सो 21 बेसिकली हम यहाँ पर लेते हैं और 19.1. 19 यहाँ पर है, 20 यहाँ, 21 will be somewhere around here एंड बेसिकली हम यहाँ पर अपना क्रॉस बनाते हैं. ठीक है, आप करेंगे तो आपका क्रॉस will be much more neater than mine. Obviously I'm using a screen here, so it's not as neat as it's supposed to be. Next हमारे पास वैल्यू है 18 and 17.2. तो 16 यहाँ पर, 17 यहाँ पर, 18. ठीक है, तो 18 and 17.2. This is 17, 17.2. So 17.2 and 18. मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ अराउंड यहाँ पर, 8.2 यहाँ पर, तो ये इस तरह बन जाएगा हमारे पास. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 16 and 14.1. 16 and 14.1 यहाँ पर हमारे पास बहुत क्लियर मार्किंग्स है इस टाइम, so we don't have to worry. Next 13 and 11.8. 13 and 11.8. 11 हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर 11.8 यहाँ पर होगा. सो 13 and 11.8 यहाँ पर, इस तरह. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 10.5 and 9.5. सो 10.5, दिस इज़ 10, दिस इज़ 11, सो कहीं यहाँ पर 10.5 एंड ये 9 है, यहाँ पर 9.5 यहाँ होगा. सो बेसिकली यहाँ पर. ठीक है, एंड अगर लेट मी जस्ट देखिए, ये पॉइंट थोड़ा आउट लग रहा है मुझे. लेट मी जस्ट लाइक डबल चेक. ये पॉइंट हमारे पास 18 and 17.2. लेकिन नहीं, मैंने सही किया है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है. लेट मी जस्ट नाउ ड्रॉ अ लाइन. यूज़ योर रूलर. आपको मेक श्योर करना है कि आपसे जितनी लाइंस हो सकें, आई मीन जितने पॉइंट्स हो सके वो लाइन में आपके आ जाएं, या लाइन ऑफ बेस्ट फिट. पर अगर नहीं आ रहे हैं, इट्स नॉट एन इशू. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें, लास्ट 3 थोड़े मुझे इरिटेट करें क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हुए हैं, तो हम इनके बीच में से निकालेंगे. मैं आपको बताती हूँ कैसे. फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह में, एक मिनट रुकें, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट, शो एवरीवन. सी, ये इन दोनों के पॉइंट के बीच में से गुजरा, तो ना एक को टच करा है ना दूसरे को. हमने बस कोशिश की है कि दोनों के करीब हो. सही, इसको भी ना नहीं टच करा, इसको भी नहीं टच करा, इसको भी नहीं टच करा, बट एक तरीके से इट जस्ट रिप्रेजेंट बेसिकली द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स. ठीक है, अब हमें g निकालना है, विच इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ. ग्रेडियंट हम कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1. अब हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट दैट इज़ नॉट ऑन योर टेबल बेसिकली। मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पर मेरा x क्या है, मेरा x है यहाँ पर 18 और मेरा y है यहाँ पर अराउंड 20, लेट्स जस्ट से 20, ठीक है, 18 एंड 20, ठीक है। अब दूसरा कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया, मेरा x है 10 एंड माई y इज़ 11, ठीक है। सो ये है हमारा y2, y1, x2 एंड x1। सो हम करेंगे 11 y2 माइनस y1 ना, सो 20 माइनस 11 एंड 18 माइनस 10, 20 माइनस 11, ठीक है, एंड 18 माइनस 10, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका आंसर मैं निकालती हूँ, 20 माइनस 11 एंड 18 माइनस 10, आंसर आ रहा है मेरा यहाँ पर 1.13 ग्रेडियंट आ रहा है, ठीक है। 1.125 आ रहा है, बट ऑब्वियसली आपने इसको राउंड ऑफ कर लिया तो ये ग्रेडियंट आ रहा है। अब हमें वेट निकालना है ऑफ द मीटर रूलर, एंड वेट हम निकालेंगे g इंटू पी, वे p इज़ 1 न्यूटन। सो बेसिकली हम करेंगे 1.13 इंटू 1 न्यूटन, तो आंसर हमारे पास ऑब्वियसली यही आएगा 1.13 न्यूटन्स, ठीक है। न्यूटन लिखना है क्योंकि आपके पास यहाँ पर न्यूटन है p में, ठीक है। अब नेक्स्ट, so just one practical reason why it is difficult to obtain accurate readings for A and B in this type of experiment। अब आप ऊपर देखें तो आप देखें कि A और B की रीडिंग्स जो ली हुई हैं उनको एक्यूरेट निकालना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक पिवट पे मेजर कर रहे हैं एक रूलर को, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला रीज़न है कि लोड विल स्लिप ऑफ ईजिली, द लोड P will slip off easily, या आप लिख सकते हैं। सेकेंड हमारे पास रीज़न होगा कि आप देखें कि P का जो सेंटर है हमने उसको मार्क किया हुआ है एट द 90 सेंटीमीटर पॉइंट, तो अब P का सेंटर ढूंढने में भी डिफ़िकल्टी होगी, सो हम लिख सकते हैं डिफ़िकल्टी इन जजिंग द सेंटर ऑफ P, ठीक है। या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि पिवट का रखना, ठीक है, पिवट ऊपर से, जैसे अगर पिवट हल्का सा फ्लैट हो, ठीक है, तो हमारा मीटर रूलर इतना ईजिली उस पर मतलब बहुत ज़्यादा आसानी से बैलेंस हो जाएगा। सब मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, अगर आपका पिवट ऐसा लगता होता तो आपका मीटर रूलर ज़्यादा इजीली बैलेंस हो जाता और A और B की वैल्यूज़ मैसअप हो जाती। तो अगर योर पिवट इज़ द पॉइंट ऑफ योर पिवट इज़ नॉट शार्प, देन दैट्स ऑल्सो इशू। तो यह मैंने आपको 3 रीजंस देख लिया, ये आप इस तरीके के रीजंस यूजुअली याद कर लिया करें, बिकॉज जब यूजुअली इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो ये आंसर्स भी रिपीट होते हैं। तो पहला आंसर था हमारे पास डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग सेंटर ऑफ P। सेकेंड हमारे पास था लोड स्लिप्स ऑफ easily, और थर्ड हमारे पास क्या था, top of pivot not sharp। not sharp, क्या 3 पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट, बल्कि ये यही क्वेश्चन का पार्ट है। The student measures the mass of the ruler on a balance. Write down the mass shown in the balance in figure 1.2 to the nearest gram. मतलब कि डेसिमल्स में दिखाना है, to the nearest gram। अब यहाँ पर हमारे पास 112.6 है। अब क्योंकि 0.6 है which is more than 5, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 113 ग्राम्स में। अब इसका वेट निकालना है। अब ऑब्वियसली मास जो होता है और वेट में डिफरेंस होता है। क्या करिए, तो वेट ऑफ द मीटर रूलर यूजिंग द इक्वेशन W is equals to mg, where g is equals to 10। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर अगर हमें W निकालना है, हमारे पास m है, ठीक है, और W is equals to mg, तो हम किस तरीके से करेंगे, हमारे पास मास है, हमारे पास 113, तो हम इसको बेसिकली क्या करेंगे, रुकें, W is equals to mg, मास हमारे पास है 113, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10। हाँ कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास हमारे पास यहाँ पर ग्राम्स में है। समझ आया आपको? अब ग्राम्स में है तो क्या होगा,
ऑटोमेटिकली हमारा ग्राम केजी में करने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जी देखें, यहाँ पर 10 न्यूटन पर केजी है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 0.113, क्योंकि ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं. तो अगर 0.113 इज मल्टीप्लाइड बाई 10, और आंसर इज 1.13 न्यूटन्स. ठीक है. State and explain whether this value of W2 can be considered equal to the value of W1 obtained in part C within the limits of experimental accuracy. अब हम देखते हैं कि हमारी W1 की वैल्यू क्या थी. देखें 1.13 एंड यहाँ पर हमारे पास है 1.13 न्यूटन. एग्जैक्ट सेम वैल्यू आई है, एग्जैक्ट सेम. State and explain the आपकी ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम आए. अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेडियंट एग्जैक्टली सेम निकल गया जैसे लोग चाह रहे थे, बट आपकी अलग भी आ सकती है, बट सिमिलर ही आएगी. State and explain whether this value can be considered to equal to value 1. अब हम बोलेंगे yes, क्योंकि values are very close, तो लिखते हैं yes. ठीक है. values are very close. मेरी वैल्यूज़ एग्जैक्ट सेम आएंगी, बट मैं वेरी क्लोज लिख रही हूँ कि इन केस आपकी एग्जैक्ट सेम वैल्यूज़ नहीं आए. एंड we're done with question 1. Question 2. A student is determining the resistance of a resistance wire. The circuit is shown in figure 2.1. तो हमारे पास figure 2.1 में हमारे पास सर्किट दिखाया है और हमें इस वायर की रेजिस्टेंस ढूंढनी है. ये वायर जो रेजिस्टेंस वायर दिया हुआ है, देखिए. ठीक है. Record the current in the circuit as shown on the ammeter. तो यहाँ पर हमारे पास 0.4 है. This will be 0.5. So this is around 0.42, 0.44, 0.46, 0.48. This is around 0.47, क्योंकि 4.6 और 4.8 के बीच में आया. 0.47 एम्पियर्स. एम्पियर्स लिखना नहीं भूलिएगा बिकॉज उसके मार्क्स होते हैं. Next, the student places the sliding contact C at a distance L is equals to 20 centimeters from B. She records the potential difference across the length L of the resistance wire. She repeats the procedure using L values of 40 centimeters, 60 centimeters, 80 centimeters, and 100 centimeters. All the recordings are shown in table 2.1. Calculate and record the table 2.1 V upon L for each value of L. तो हर L की वैल्यू पे हमारे पास एक V की डिफरेंट वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, उसका V अपॉन L का हमें ये वैल्यूज़ निकालनी. सो इसकी ऑब्वियसली वो वोल्टेज है, क्योंकि आप बताएं लेंथ ऑब्वियसली सेंटीमीटर होता है, वोल्टेज होती है V, तो हमारे पास होगा V अपॉन सेंटीमीटर. अच्छा, अब हम इसकी वैल्यूज देखते हैं. तो होगा हमारे पास 0.5 अपॉन 20. इसका आंसर है हमारे पास 0.025. आई हैव द वैल्यूज रिटन, आई एम जस्ट गोना राइट देम डाउन. आप ऑब्वियसली अपनी इसको मेरे साथ डबल चेक कर लें. 0.027, 0.0 क्या हो रहा है 26 एंड 0.024. ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं. Tick the box to show your conclusion from the result. V upon L is approximately constant. No. V upon L is decreasing as V increases. I don't know. V upon L is increasing as V increases. I don't know. There is no simple pattern for this V upon L in the results. अब देखें, हमारी वैल्यूज़ देखते हैं. ठीक है, पहली वैल्यू है 0.025 एंड आखिरी वैल्यू 0.024. वेरी सिमिलर. यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कम हुई, फिर ज़्यादा हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, लेकिन इट्स वेरिंग अराउंड द सेम थिंग ना. अराउंड 0.025 या अराउंड 0.024 इस तरीके के अराउंड ही है, तो हम बोलेंगे V अपॉन L इज़ अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट, justify your conclusion by reference to your results. अब क्या conclusion को हम result से क्या करेंगे, हम यही बोलेंगे ना, values are very close और values are within the limits of experimental accuracy. ये आपको याद करना. Values are within the
limits of experimental accuracy. Why? Because जैसे हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें कुछ चीज़ें ना आपसे ऊपर नीचे जा रही होती हैं और वैल्यूज़ ऊपर नीचे जाती हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट फिर भी एक्यूरेट रहता है क्योंकि वैल्यूज़ इतनी ऊपर नीचे नहीं हुई. तो हम ये लिखते हैं, वैल्यूज़ आर विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी. Calculate the resistance of 100 centimeter of the resistance wire using the equation R is equals to VI, where V is the potential difference across 100 centimeters of the resistance. Use the value of current from part A and give your answer to a suitable number of significant figures for this experiment. अच्छा, तो ये बात बताएं कि ऊपर हमारे पास करंट कितना था. पहले हम ऊपर जाकर करंट चेक करते हैं. जहाँ पर हमें करंट पूछा गया था, करंट था 0.47. ठीक है, करंट था हमारे पास 0.47 and the voltage for 100 is 2.41. So 2.41 upon 0.47. ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर. 2.41 upon 0.47. एक सेकेंड, 0.47. आंसर आ रहा है हमारे पास अराउंड 5.1. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर ऊपर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, और नीचे हमारे पास यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वी आल्सो हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर. सो आप अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं 5.13 लिख सकते हैं. ठीक है, ये तो मैं 5.1 लिख सकते हैं. आई एम जस्ट गोना राइट 5.1 बिकॉज आप ये तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख सकते हैं या 3, जहाँ पर आपको 3 दिए गए. In this type of experiment, is it sensible to keep the temperature of the resistance wire as close to the room temperature as possible? Suggest one way to minimize the rise in temperature of the resistance wire. अब क्या करें आपको पता है कि जब आप करंट आपका वायर में जा रहा है तो आपकी टेम्परेचर राइज करेगा. ठीक है, जितना करंट होता है उतना ज़्यादा आपका टेम्परेचर राइज करेगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कीप करंट लो करंट रखेंगे तो लो ऑब्वियसली हमारी रेजिस्टेंस की वजह से लो टेम्परेचर एक्सपोजर होगा. ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं स्विच ऑफ बिटवीन रीडिंग्स, कि रीडिंग्स के बीच में आप अपना उसको बंद करें फिर खोलें, बंद करें खोलें, उससे आपका इतना ज़्यादा हीट अप नहीं होगा. ठीक है, ड्रॉ अ सर्किट सिंबल फॉर अ वेरिएबल रेजिस्टर. वेरिएबल रेजिस्टर का हमारा सर्किट सिंबल क्या होता है? ये ऐसे हमारे पास रेजिस्टर आ गया और फिर हमारे पास ऐसे एरो आता है. दैट्स अ वेरिएबल रेजिस्टर और आल्सो नोन एज अ रियोस्टैट. ठीक है, question number 3. A student is investigating the rate of cooling of water under different conditions. A greater rate of cooling occurs if there is a greater change in the temperature during the same period of time. Shows the apparatus. मतलब कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उतनी ज़्यादा ऑब्वियसली हमारे पास कूलिंग होगी उस पीरियड ऑफ टाइम में. ठीक है, पहले हमारे पास थर्मोमीटर है. इट इज़ टचिंग इनटू अ हॉट वाटर बीकर, जिसके अंदर गर्म पानी है, लिड है और थर्मोमीटर टच कर रहा है पानी को. ठीक है, देन वी हैव क्लैम्प. ठीक है, जिसने बेसिकली थर्मोमीटर को पकड़ा है एंड इट्स ऑन टॉप ऑफ अ बेंच. A thermometer in figure 3.2 shows the room temperature OR at the beginning of the temperature as this. ये हमें इसका वैल्यू निकालना है थीटा आर की. ठीक है, दिस इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट. रूम टेम्परेचर बेसिकली रूम टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 20 और 30 के बीच में हमारे पास 25 होगा, लेकिन 25 से ही कम है तो ये एक डायल कम है तो ये हमारे पास होगा 24 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज यहाँ पर हमें डिग्री सेल्सियस दी हुई है. डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन योर यूनिट. The student pours 200 centimeter cube of hot water into the beaker. She records the temperature of the hot water at time is equals to 0. She immediately starts the stop clock. She continues recording the time and the temperature readings every 30 seconds. The readings are shown in table 3.1. तो ये हमारे पास देखें, जो हमारे पास बीकर है, कैन को अभी छोड़ दें, टेबल 3.1 को नोटिस करें. ये बीकर है, टाइम 0 पे हमारे पास टेम्परेचर 94 डिग्रीज and time 30 seconds we had 93 degrees, 60 seconds 92 degrees,
सो आपको नज़र आ रहा है दैट दिस इज़ अ reversely proportional reversely proportional relationship. The student repeats the procedure using a metal can painted black in place of the beaker. Beaker के बजाय उसने metal can use किया जो black painted है. ये उसका है can का. Table 3.1. इसमें भी हमें दिख रहा है कि indirectly proportional relationship है. ठीक है, and values बहुत करीब हैं. ठीक है. So complete the column headings in table 3.1 and 3.2. Column headings obviously time हमारे पास होता है seconds and theta is degrees Celsius. Time is seconds, degrees Celsius. ठीक है. Next, look carefully at the readings in table 3.1 and 3.2. Tick the box to show your conclusion from the readings. First box. The water in the beaker has a greater rate of cooling than the water in the can. That's true or not? I don't think so. क्योंकि दोनों की values बहुत करीब है. The water in the beaker has a smaller rate of cooling than the water in the can. Again, that's not true. दोनों की readings बहुत करीब है. There is no significant difference between the rates of cooling of the water in the beaker and the can. That is correct. Justify your conclusion by reference to the reading. Obviously, क्या बोल रहे हैं हम कि हम ये लिख सकते हैं कि differences are very minute या तो फिर by 1 degree Celsius. इतनी है ना, 1 डिग्री ऊपर नीचे हो रहा है. ठीक है. और आप ये भी लिख सकते हैं कि we have pairs of readings. For example, 94 and 93. We have क्या बोल रही हूँ 89 and 87. इस तरीके के हमारे पास पेयर्स हैं. ठीक है, लिख सकते हैं. ये भी लिख सकते हैं, हम लिख देंगे ये भी लिख सकते. हाँ, we have pairs of very similar readings. हमारे पास आ जाता है जैसे मैंने ऊपर बताया था 94 and 93. We had 89 and 87. 89 and 87 and etc. ठीक है. Next, a student in another school carries out the experiment and reports that the rate of cooling of the water in the can is different from the rate of cooling of the water in the beaker. हमने इसका opposite सोचा था. हमने बोला था कि कोई इतना difference नहीं आ रहा. He plans a change to the experiment to find out whether the difference in this rate of cooling is caused by 1. The matte black surface of the can being a better radiator of thermal energy than the shiny surface of the beaker. Next, the metal of the can being a better conductor of thermal energy than the material of the beaker. Suggest 2 suitable changes to the apparatuses that the students could make. ठीक है. Basically हमें बोला क्या गया है कि हम दोनों को क्या कहते हैं, करीब कैसे कर सकते हैं. 2 changes कि हमें पता चले कि एक्चुअली फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं. समझ आ रही है क्या? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमें बोल रहे हैं कि मैट ब्लैक सरफेस ऑफ द कैन, ठीक है, और बीकर की शाइनी सरफेस, इसकी वजह से इशू हो रहा है क्योंकि कैन मैट ब्लैक है तो वो बेटर रेडिएटर है और बीकर शाइनी है तो वो इट्स नॉट अ बेटर रेडिएटर, नॉट अ गुड रेडिएटर. तो हम इसको स्वैप कर देते हैं. तो हम बोलेंगे वी यूज़ अ ब्लैक पेंटेड बीकर. ठीक है, हम एक यूज़ अ ब्लैक पेंटेड बीकर एंड हम ये लिखेंगे यूज़र शाइनी, बल्कि हाँ सॉरी अलग से, यूज़र ब्लैक पेंटेड बीकर अलॉन्ग विद एंड ब्लैक पेंटेड कैन. अब दोनों में डिफरेंस नहीं रहा. पहले जो हम बोले थे कि ब्लैक है वो ज़्यादा बेटर रेडिएटर है थर्मल एनर्जी का, अब दोनों ब्लैक हैं. तो अब देखेंगे. ठीक है, एक और चीज़. ठीक है, वी यूज़ हम क्योंकि हमारा बीकर जो है वो ऑब्वियसली शाइनी है. ठीक है, तो हम एक क्या करते हैं, हम एक शाइनी कैन यूज़ करते हैं. ठीक है, और एक नॉर्मल बीकर जो हमारा है, यूज़ अ शाइनी कैन एंड अनपेंटेड
बीकर। तो दोनों में आपको इतने डिफरेंसेस नहीं आ रहे, जैसे ऊपर ब्लैक था, दोनों में ब्लैक हो गया, अब शाइनी था एक शाइनी नहीं था, अब दोनों शाइनी है, ठीक है। State two variables that could be controlled in order to make this experiment a fair test. तो हम ये कर सकते हैं कि हम बोलें for example starting temperature, same starting temperature of the water, same volumes, same volume of water added. ऑब्वियसली क्यों पता है कि ज़्यादा पानी होगा तो उसमें ज़्यादा वो एनर्जी विथ होल्ड करेगा, इस तरीके की चीज़, ठीक है। एंड सेम रूम टेम्परेचर, ये तो पे कांस्टेंट रूम टेम्परेचर लिख सकते हैं, कांस्टेंट रूम टेम्परेचर, ठीक है। Step 1 precaution that you would take in order to record accurate temperature readings. Obviously हम ये बोलेंगे कि हम अपने वाटर को, अगर आपको पूरे वाटर का एक ही वैल्यू लेनी है, फॉर एग्जांपल ऊपर से पानी ठंडा नहीं हो, नीचे से पानी गर्म हो, इस तरीके से, तो हम पहली चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं स्टरिंग, ठीक है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है। हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम थर्मामीटर को परपेंडिकुलर व्यू करें ताकि ऊपर और नीचे का टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, व्यूइंग ऑफ थर्मामीटर, ठीक है। We're done with question 3. Now we have question 4. A student is investigating the work required to put a box containing some masses up a sloping wooden board. तो हमारे पास एक वुडन बोर्ड है एंड उस पर हम एक मास का बॉक्स है, इसमें कुछ मासेस है, उसको हम पुल कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, कुछ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। Plan an experiment to investigate how the work required to pull the box up the slope depends on the mass of the box and its contents. Work done is calculated using the equation. Work done is equals to force into distance moved in the direction of the force, मतलब perpendicular distance basically. The following apparatus is available to the students: a wooden board, a box with length of string attached, a selection of masses that fit in the box, a meter ruler, and an electronic balance. In your plan, you should list any apparatus that you would use. ठीक है? Explain briefly how you would carry out the investigation, including measurements you would take. State the key variables you would control. Draw a suitable table with column headings to show how you would display your readings. You are not required to enter any readings into the table, and explain how you would use the readings to reach your conclusion. You may add a diagram if it helps your explanation. पहले तो मैं बोला है कि list any other apparatus you would need. हम ढूंढ क्या रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं work. हम देख रहे हैं कि if work is related to the mass of the box and its contents. ठीक है? हम बोल रहे हैं कि whether work is affected or not affected, या इन कोई relationship है with mass, या हमें ढूंढना है is this true or not. ठीक है? अब आपको पता है कि वर्क का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. हमें पता है कि फोर्स मास पर डिपेंड करता है बिकॉज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. लेकिन हम अभी ऑब्वियसली आप ये नहीं बोल रहे कि वो रिलेट करता है, हमें अपने अजम्पशन नहीं कर, हमें एक्सपेरिमेंट में दिखाना है. ठीक है, अब हमें डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ऊपर हमारे पास दिया हुआ है ये कहाँ है ये मीटर रूलर. अब फोर्स कैसे निकालेंगे? मास भी डिफरेंट हम निकाल सकते हैं, हमारे पास बॉक्स भी है, हमारे पास डिफरेंट मासेस भी हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. हम फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स निकालने के लिए हम एक यूज़ करते हैं न्यूटन मीटर या तो फिर एक फोर्स मीटर. ठीक है, तो हमें बेसिकली हमारा जो बॉक्स है जिसमें मासेस हैं उसकी स्ट्रिंग को हमें फोर्स मीटर से अटैच करना पड़ेगा कि पता चले कि कितनी फोर्स लग रही है इस बॉक्स को पकड़ने में, इस बॉक्स को खींचने में, जो भी. ठीक है, तो आप चाहे तो दूसरा डायग्राम बना दें. मैं इसी पे कुछ एडिशंस कर रही हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पुली ऐड कर रही हूँ, बल्कि मैंने बहुत ऊपर ऐड कर दिया. मैं यहाँ पर एक पुली ऐड कर रही हूँ. ठीक है, पुली ऐसे बना देती हूँ मैं. ठीक है, आई एडेड अ पुली एंड यहाँ पर मैंने एक
न्यूटन मीटर ऐड किया है। न्यूटन मीटर या फोर्स मीटर, उस पर एक स्प्रिंग जैसा लगा हुआ होता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि पहले तो हमें ऐड क्या करना है, हम ये लिख देते हैं एपरेटसेस, ठीक है। हम लिख सकते हैं फोर्स मीटर या तो फिर न्यूटन मीटर एंड अ pulley needed as well, ठीक है। ये हमें और apparatus की ज़रूरत है, ये हमने कर दिया। List any other apparatus you do. Explain briefly how you would carry out the investigation including the measurements you would take. तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं कि using okay नहीं पहले हम लिखते हैं, हम बॉक्स को क्या करेंगे, स्लोप के ऊपर पुल करेंगे, हम उसकी फोर्स मेजर करेंगे और हम मेजर करेंगे कि डिस्टेंस कितना मूव हुआ है, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी आर गोना राइट, पुल बॉक्स अप द स्लोप एंड measure force using Newton meter and distance using meter rule, ठीक है। ये दो, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा मेथड क्या होगा, ये हमारा मेथड जो हम लिख रहे हैं, पहले हमने ये किया, ठीक है। हमें इसमें क्या पता चल गया, हमें फोर्स पता चल गया, हमें डिस्टेंस पता चल गया, हमें इसका वर्क मालूम हो गया, फॉर दैट वन स्पेसिफिक मास हमें वर्क मालूम हो गया। फिर हम लिखेंगे रिपीट with different masses, ठीक है। एंड बल्कि हम ये लिख रहे हैं, पहले तो ये हमारा मेथड है, अभी हम बता नहीं रहे हैं कि हम ये मासेस और डिफरेंट डिस्टेंसेस को लेकर हम वर्क क्या करके हम बाद में बताएंगे, अभी हमसे हमारा मेथड पूछा हुआ है, तो हमने ऊपर हमारा मेथड लिख दिया। एक्सप्लेन द की वेरिएबल्स दैट यू वुड कंट्रोल। अब क्या क्या चीज़ें कंट्रोल होंगी, पहले तो हमें ये देखना है कि डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, दैट विल मेक इट ईजियर फॉर अस। ऑब्वियसली आप डिस्टेंस डिफरेंट भी रखें तो आपका उसमें कोई इशू नहीं आएगा, बट ये प्रेफर्ड ये होगा ताकि फिर आप अगर ये कांस्टेंट हो गया ना तो आप वर्क और मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख सकते हैं या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कीप डिस्टेंस मूव्ड कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट रखना है, हमारा जो हाइट है जिस पे पुल किया जा रहा है हमें वो भी कांस्टेंट रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्ट्रेट चीज़ है आप उस पर खींच रहे हो और आप ऊपर खींच रहे हो या आप ट्रेडमिल में खा रहे हो, इफ़ यू आर लाइक रनिंग ऑन लाइक बेस लेवल, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे भाग रहे हो एंड इफ़ यू आर रनिंग ऑन अ स्लोप, बहुत डिफरेंस होता है, आपको ज़्यादा मेहनत लगती है स्लोप पे, तो हम ये भी लिखेंगे एंड द एंगल, ये मैंने क्या लिखा है, ये कैसी राइटिंग हो रही है मेरी, एंगल ऑफ द स्लोप, तो अब ये लिख सकते हो, ऊपर हमें बॉक्सेस दिखाए हुए हैं, ठीक है, ब्लॉक्स दिखाए हुए हैं जिसने वुडन बोर्ड का पकड़ा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ ब्लॉक्स होल्डिंग व्हाट, द वुडन बोर्ड, ठीक है। ये हमने लिख दिया, तो ये हमारे की वेरिएबल्स भी हैं। ड्रॉ अ सूटेबल टेबल विद द हेडिंग्स टू शो हाउ यू वुड डिस्प्ले योर रीडिंग्स। तो हेडिंग्स हम किस तरह करेंगे, पहले तो हमारी एक हेडिंग होगी हमारे, ये क्या है, एक हेडिंग हमारी होगी हमारे मास की, ठीक है, हमारे पास एक हेडिंग होगी हमारे मास की, और ये ऑब्वियसली हमारे पास केजी होगा, हमारा यूनिट लिखना मत भूलिएगा। सेकंड है हमारे पास फोर्स, जो हमारे पास न्यूटन में होगी। अगर आपने ऐसा ऊपर नहीं लिखा हुआ कि आप डिस्टेंस कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, बट मैंने सिर्फ ये दोनों लिखा है, फोर्स, मास एंड फोर्स, ठीक है, क्यों मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि हम डिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे। ये दो हमारी हेडिंग्स, ठीक है। और जैसे हमें फोर्स पता चल गया, बल्कि ये दो हैं, हाँ ठीक है, एंड उसके साथ हम बल्कि डिस्टेंस भी लिख देते हैं, मैं लिख ही देती हूँ डिस्टेंस इन मीटर्स,
और फिर हम यहाँ पर वर्क भी लिख देंगे, वर्क डन, ये होता है हमारे पास जूल्स में, ठीक है। तो हमारे पास हर उस ऑब्वियसली हम निकालेंगे किससे, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फिर आप इसको इन वैल्यूज़ को देख सकेंगे कि ये लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेटेड हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेटेड हैं ही नहीं, ठीक है। हमने अपने टेबल की रीडिंग्स बता दी। एक्सप्लेन हाउ यू वुड यूज़ द रिजल्ट्स टू रीच अ कंक्लूजन। अब हम अपना बताएंगे कि हमने अपना मेथड जो ऊपर लिखा था और जो हमारे अपनी रीडिंग्स हैं उससे हम कंक्लूजन पे कैसे पहुँचेंगे, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि यूजिंग our values for force and distance, we will find the amount of work done for different masses, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे कि we will compare the work done values with the values of our masses to find a directly proportional, a direct, यहाँ पे लिख सकते हैं a direct or indirect relationship। आप ये भी लिख सकते हैं कि आप ग्राफ यूज़ कर लें बताने के लिए कि रिलेशनशिप डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, ये भी आप बोल सकते हैं। या तो आप ये भी हाँ लिख सकते हैं, और प्लॉट अ ग्राफ ऑफ वर्क डन अगेंस्ट मास टू सी इफ एनी रिलेशनशिप exists, ठीक है। ये हमने अपने पॉइंट्स क्लियर करने हैं। So we're done with this paper. I hope you all understood everything. अगर ऐसी कोई चीज़ जो आपको नहीं समझ आए, please mention it down in the comments below and I will try my best to get back to you. Thank you so much for joining us today and inshallah I will meet you guys in the next video. Allah Hafiz.